Hello and welcome friends. In this particular video, we are going to learn about the another type of distance relay, which is distance time impedance relay, or you can say the induction type impedance relay. This is the distance time impedance relay, or you can say the induction time impedance relay. Fine. So this relay adjusts automatically and its time, or you can say the operation corresponding to the distance of the fault from the relay. So operating time is proportional to impedance and is proportional to obviously distance. So let me just tell you that how it will look like. Yes, it will look like this. Okay. Yes. So this is the complete diagram of your induction type impedance relay. You can see here one electromagnet is here. This is the voltage restraining magnet. This is the this contact is going to the trip circuit. This is the moving contact. Here is a spiral spring also. This is the spindle. This one is the upper magnet, electromagnet, and this is the lower electromagnet. You can see the primary winding is connected like this. Okay, it is having a 7 connections. Okay, and another one is aluminum disc is here, and this second winding is connected in series with this lower magnet, and this is the plug setting bridge. ओके सो बेसिक जो भी है वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है. ये जो करंट आएगा वो इस तरह से सिटी में आएगा. ठीक है, किस तरह से ये वर्क करता है देखिए. यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले. ये आप देख रहे हैं ना, देखिए ये जो पूरा सेक्शन है, ये जो इतना सेक्शन है, ये ई और ये जो पूरा सेक्शन, इस तरह से मैं अगर सेक्शन को दिखाऊं इस तरह से, तो ये जो पूरा सेक्शन है वो है इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले. वो क्या है? इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले. सो इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले यूनिट विच इज अ करंट ड्रिवन एलिमेंट, and the spindle, this spindle which is carrying the disc, which is carrying this disc of the element is connected to a second spindle with the help of spiral spring. ये देखिए ये जो है ना spiral spring की मदद से यहाँ पे इस तरह से कपलिंग की गया है. and this second spindle is carries moving contact. ये देखिए ये दूसरा स्पिंडल है, तो ये जो कैरी कर रहा है मूविंग कॉन्टैक्ट कैरी कर रहा है यहाँ पे. फाइन. So the spindle which is carrying the disc of the element is connected to the second spindle with the help of spiral spring. Okay, and this coupling is connected over here. This second spindle carries moving contact, and which is nothing but a bridging piece which can bridge the trip contacts when the relay operates. So the trip contacts are normally open, and this spindle is held in this position by an armature held against the pole face of an electromagnet. Fine. So this electromagnet is energized by this. The voltage of the current is to be protected. Fine. So basically ये क्या कहलाता है? Basically it consists of two types of relay. 2 relay है. देखिए पहली जो है वो है restraining force प्रोड्यूस करेगी यहाँ से. सो वो जो क्या कहलाएगा? वोल्टेज रिस्ट्रेन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो पहला जो फोर्स होगा वो क्रिएट होगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स, तो वो इसकी वजह से क्रिएट होगा. दूसरा जो है वो है फॉर टू प्रोड्यूस दी ऑपरेटिंग टॉर्क. दूसरा फोर्स हमें प्रोड्यूस करना है वो है ऑपरेटिंग फोर्स. एक रिस्ट्रेनिंग टॉर्क तो प्रोड्यूस हो ही रहा है इसकी वजह से, लेकिन ऑपरेटिंग टॉर्क भी हमें प्रोड्यूस करना है ना, तो ऑपरेटिंग टॉर्क भी हमें प्रोड्यूस करना होगा. सो टू डू दिस लोअर पार्ट जो होगा, लोअर पार्ट ऑफ दिस रिले, बेसिकली इट इज एन ओवर करंट रिले. तो लोअर पार्ट जो है वो है ये पूरा ओवर करंट रिले है. So from CT, as you can see at this, from CT, this is connected to the primary winding, and how many of number of turns are there in the primary winding, that will be decided by the plug setting bridge. Fine. Depending on how much minimum value of the current is required for this operation, we will make the winding accordingly. I repeat, depending on the how much minimum value of the current is required for this operation, for relay operation, we will make the winding accordingly. Now there will be a secondary winding. There will be a secondary winding which will make the winding अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है वो secondary winding है अपनी. सो ये जो सेकंड वाइंडिंग है विच इज कनेक्टेड विद द लोअर, ये देखिए ये जो है ना ये सीरीज में कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. ओके, तो ये सीरीज में कनेक्टेड है. सो नाउ देयर विल बी अ सेकेंडरी वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस लोअर मैग्नेट. द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, दिस पर्टिकुलर जो भी लोअर मैग्नेट है उसके अंदर अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मर एक्शन फ्रॉम द प्राइमरी टू सेकेंडरी, दिस प्राइमरी टू सेकेंडरी. सो द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी इज φ1. ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना उसके अंदर कोई फ्लक्स, मान लीजिए कोई फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है ना वो φ1 होगा.
So because of this particular flux, the EMF is induced in the secondary winding. ये जो flux Y1 है वो ये जो flux Y1 इस सेकेंडरी के साथ लिंक होगा और लिंक होने के बाद यहाँ पे जो EMF जो इंड्यूस होगा वो होगा आपका EMF इंड्यूस होगा. तो ये जो EMF इंड्यूस होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में होगा. तो ये जो EMF इंड्यूस होगा ये सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर एक्शन की वजह से इसके अंदर कोई करंट जो है वो I2 प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? I2 प्रोड्यूस होगा. सो दैट विल पास थ्रू योर सेकेंडरी वाइंडिंग. अगर मैं बोलूं कि देखिए यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ, तो जो भी फ्लक्स Φ1 होगा, फ्लक्स Φ1 इस तरह से मैं दिखाऊं तो ये फ्लक्स Φ1 होगा अपना. तो जो EMF इंड्यूस होगा वो 90 डिग्री लैग करेगा ये इस Φ1 से. तो ये जो हो जाएगा अपना 90 डिग्री. और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट होगा इससे कुछ 5 डिग्री लैगिंग पे. ठीक है, मान लीजिए थीटा, चलिए ठीक है, यहाँ पे 5 लिया तो ये थीटा. सो ये जो होगा करंट वो I2 होगा. ठीक है, सो I2 के फेज में ही क्या होगा अपना दूसरा जो भी फ्लक्स होगा Φ2, क्योंकि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा ये लोअर मैग्नेट में वो होगा Φ2 और वो होगा इन फेज विथ दिस पर्टिकुलर करंट ऑफ योर लोअर मैग्नेट. तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, सो ये जो एंगल है ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये पूरा एंगल अल्फा में अगर मैं बोल दूं, सो बिकॉज ऑफ दिस अल्फा योर टॉर्क और यू कैन से द फोर्स इज प्रोड्यूस्ड. देखिए इंटरेक्शन होगा ना दोनों फोर्स के बीच में, तो मैं ये बोल सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू K कांस्टेंट Φ1 Φ2 एंड sin alpha. So the interaction of these two fluxes will get you your torque. So this is sin alpha. देखिए ये sin alpha है ना, वो कुछ 90 प्लस डिग्री है. ये देखिए 90 और प्लस कुछ ये डिग्री है ना, ये 90 तो है ही, प्लस कुछ डिग्री है ना. तो ये sin 90 प्लस कुछ डिग्री, तो ये sin alpha मैं क्या बोलूँगा, sin 90 प्लस सम डिग्री. So this sin alpha is near to 90 degree, so that the torque produced by this relay will be maximum. टॉर्क आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के करीब होगा. ठीक है, सो बोथ Φ1 एंड Φ2 प्रोड्यूस ड्यू टू द प्राइमरी करंट एंड द करंट गिवन टू प्राइमरी ओनली. सो वी कैन से दैट द करंट इज स्क्वायर्ड. ओके, तो प्राइमरी का करंट जो होगा वो कितना होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा. So we can say that the torque is produced, it is K2 constant because of I square. Now because of this particular current, your disc will start to rotate. ये जो आपकी डिस्क होगी ना, ये जो डिस्क होगी आपकी इस तरह से कुछ रोटेट होनी, इस तरह से स्पिंडल जो है वो स्टार्ट कर देगी रोटेट करने के लिए, रोटेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. Now see, observe that the amount of torque is produced, the produce is proportional to the current square. जो भी टॉर्क आपका प्रोड्यूस होगा वो होगा आपके करंट के प्रोपोर्शनल में, लेकिन वो स्क्वायर ऑफ द करंट के प्रोपोर्शनल में होगा. ऑन द स्पीड, ये देखिए ये जो यहाँ पे स्पिंडल घूम रहा है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. सो ऑन द स्पीड एट विच द डिस्क इज रोटेट, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ करंट्स. सो वी कैन से दैट द स्पीड ऑफ द स्पिंडल, ये जो स्पिंडल की स्पीड होगी, द स्पिंडल स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा. सो द टाइम टेकन टू रोटेट बाय दिस डिस्क at some angle, so let us assume that it has rotated some angle theta before its operation. So time taken is inversely proportional to the current. That means we can write theta is proportional to 1 by I square. So whenever the spindle is rotated in this direction, there will be a spiral spring which is having a property when it is twist, whatever the force is exerted on this, that will be stored in the spring and that will be transferred to your secondary armature. That means spiral spring is not directly connected to another spindle. ये दूसरा जो स्पिंडल है, तो ये जो स्पिंडल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये स्पाइरल स्प्रिंग जो है उसके बीच में है. So it is connected through a spiral spring. So whenever this this spindle rotates, that the energy stored in this particular spiral spring, and this energy will be exerted on the armature.
सो डिपेंडिंग ऑन, सो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ मच एंगल ट्विस्ट, सो अकॉर्डिंगली योर फोर्स विल बी देयर. दैट मीन्स द स्पाइरल स्प्रिंग, द फोर्स इज प्रोड्यूस. देखिए ये फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो होगा थीटा के प्रोपोर्शनल. ये जो एंगल घूम रहा है ना, ये स्पिंडल घूम रहा है, वो थीटा डिग्री इस तरह से घूम रहा है. सो फोर्स जितना भी, ये थीटा डिग्री कितना घूमेगा, जितना फोर्स आपके इस स्पिंडल पे लगेगा. ठीक है. सो ये एंगल जो है इस तरह से रोटेट होगा. सो एंगल बाय विच इज रोटेटेड दैट डिपेंड्स ऑन योर फोर्स. फाइन. सो दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट द स्प्रिंग. ये देखिए ये जो है ये इस तरह से स्पिंडल को रोटेट करने की ट्राई करेगा. बट एक्चुअली दिस इज अपोज्ड बाय योर, ये इस तरह से अगर ये मूव करने की ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पे उसको अपोज कौन करेगा, ये जो यहाँ पे मैंने लगाया है वोल्टेज रिस्ट्रेंट मैग्नेट. तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा और इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो वो वोल्टेज जो है वो इसको रोकेगा इस तरह से मूव होने के लिए. सो दिस इज एक्चुअली द अपोज्ड बाय योर वोल्टेज रिस्ट्रेंट मैग्नेट, or you can say because amount of force exerted by this particular restraint magnet that depends on how much value of voltage is there. So because of voltage restraining force is produced, and again this restraining force, ये जो restraining force होगा आपका वो होगा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल में. ठीक है. जो भी ऑपरेटिंग कॉइल के अंदर जो करंट था वो आपका प्रोपोर्शनल था करंट के स्क्वायर में, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, वोल्टेज के स्क्वायर के. सो वी कैन से दैट द रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज ऑपोजिंग एंड ऑपरेटिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो ओपोजिंग कर रहा है वो है वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, और जो ऑपरेटिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में. ठीक है. सो वो जो क्या करेगा, रिले को, वो स्पिंडल को इस तरह से रोटेट करने की ट्राई करेगा. सो वेन एवर द एंगल थीटा दैट इज ट्विस्टेड बाय स्पाइरल स्प्रिंग विच इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, द डिस्क गोज ऑन रोटेटिंग एंड द एंगल थीटा विल गो ऑन इंक्रीजिंग. ये थीटा जो है उतना बढ़ता जाएगा और ये स्पिंडल इस तरह से घूमता रहेगा. सो वेन एवर दिस फोर्स is equal to restraining force, whenever this force is equal to restraining force, then your armature is released and the contacts of trip circuit is closed. Fine. So you can see the amount of angle by which this spiral spring should rotate, or you can say your spindle should rotate, that depends on the value of voltage. ये कितना घूमेगा ये डिपेंड करेगा ये यहाँ से आ रहा वोल्टेज उसकी वैल्यू पे. सो जितना वोल्टेज ज्यादा होगा, मोर विल बी द एंगल बाय विच इट शुड रोटेट द प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टॉर्क. मोर विल बी द वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, मोर विल बी द एंगल बाय विच इट शुड रोटेट द टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टॉर्क. फाइन. सो the restraining force, see whatever is there, it's set by and you decide by how much angle it should rotate in order to operate this armature, and this angle by which time taken to rotate by this angle is inversely proportional to current. So let me just write here that theta required to operate relay is proportional to V square, because we are having a restraining coil. सो रिस्ट्रेनिंग कॉइल का जो भी आपका वोल्टेज होगा, मतलब जो भी वोल्टेज सेट करेगा, वो वोल्टेज जो होगा वो आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के स्क्वायर में. ठीक है. जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के स्क्वायर में, और जो भी करंट वहां पे आएगा ऑपरेटिंग कॉइल में से, वो होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में. ओके. So theta required to operate is proportional to V square, and the time required to set this theta, जो भी टाइम लगेगा थीटा को सेट करने के लिए, वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट के स्क्वायर में. So the time of operation, we can write time of operation is proportional to V by I square is proportional to your impedance, So under normal operating condition, the force exerted, sir, let me summarize this one, that under normal operating condition, the force exerted by voltage restraining magnet is more than the produced by the overcurrent induction element. Fine. Thus the trip contacts remain open and relay is inoperative. So when the fault occurs, the induction disc start rotating and the speed of the disc is proportional to the operating current and neglecting this spring effect. Okay. Hence the time which the disc required to turn through
the angle through the given angle, let me just show you this angle. Yes, this particular theta angle, it varies inversely with the current. So as the disc rotates, the spiral spring is wound, and this exerts a force on armature so as to pull it away from the voltage restrained magnet, and the disc continues to rotate till the tension of the spring is sufficient to overcome the restraining force produced by the voltage restraining magnet on the armature. So immediately the moving contact bridge are you can say immediately this particular bridge is fixed contact, you can say is connected to the tripping circuit, and this opens the circuit breaker to isolate the faulty section. So let me just draw the characteristics, time versus distance. So I can write this the time versus distance characteristics. Effect will be like this. This the see the time of operation will be is proportional to V by I square and proportional to impedance. So we'll see the effect will be like this. Effect will be like this. This is the exact effect of your relay when it operates. Another one is the approximation. We can set like this. This is the approx region, and this can be made. And obviously this is the minimum operating time that is required by your relay, minimum time that is required to operate by your relay, and this is the time because of the spring tension which are having the K4, and this is the constant. So because of this your relay will operate like this. This is the exact position, but we can made the approximately linear characteristics for the same. सो उस हिसाब से अगर मैं टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन देखूँ, सो टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने ए बी और सी जो तीनों जो है वो बस ली है, देखिए इस तरह से. सो वो लिनियरली वेरी होगा. तो यहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड टाइम है, ये जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है फॉर ऑपरेशन ऑफ रिले. सो यहाँ पे है टाइम ऑफ ऑपरेशन वर्सेस डिस्टेंस. ठीक है. सो ए पे देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ रिले ले लूँ तो यहाँ पे कोई सी टी होगा, यहाँ पे कोई पी टी, और वो जो है वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों क्वांटिटी आपके रिले को देगा, और यहाँ पे कोई इम्पिडेंस सेट होगा. यहाँ पे भी कोई रिले मैं ले लूँ बी पॉइंट पे, यहाँ पे भी कोई रिले है, उसको सी टी पी टी, और ये दूसरा यहाँ पे. सो ए बी और सी तीनों के तीनों जो भी है उसके जोन में, यहाँ पे इस सेक्शन में तीनों के तीनों के पास रिले जो है वो यहाँ पे रखी गई है. तो सो लेट अस एज्यूम दैट फॉल्ट इज हैपनिंग हियर. सो विच रिले विल ऑपरेट, देखिए यहाँ पे कौन सी रिले ऑपरेट होगी. तो आप देख सकते हैं अगर मैं इस तरह से कुछ मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम रखूँ तो ये जो है लीनियरली कुछ वेरी होगा, तो कुछ इस तरह से होगा. दूसरा जो होगा वो कुछ इस तरह से वेरी होगा, और तीसरा जो है वो कुछ इस तरह से वेरी होगा. सो आप देख सकते हैं अगर फॉल्ट यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल होता है तो ये जो है उतना टाइम, ये डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे सी के पास डिस्टेंस जो है काफ़ी कम है. तो रिले जो है आपकी सी के पास जो भी रिले है वो आपकी ऑपरेट कर जाएगी इंस्टेंटली. अगर ये फेल होती है, अगर ये सी रिले फेल होती है तो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए हम जो बी के पास जो रिले है वो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं. तो आफ्टर सम टाइम डिले योर रिले एट लोकेशन बी विल ऑपरेट, एंड आफ्टर सम टाइम इफ रिले बी फेल्स टू ऑपरेट देन योर रिले एट ए लोकेशन विल स्टार्ट ऑपरेटिंग. सो दिस इज हाउ योर डिस्टेंस रिले वर्क्स. थैंक यू.